Okay, good morning everyone. Already we have completed the unit number 1. I'm seeing only 43 students, so wait for 1 minute. Please join on time so we can start our session on time. Even though I am joining on time, because if I am not joining on time, then you may suffer. If I will start your session on time, then you will miss some important content. So I request all of you join on time. And one more thing, if my voice is not clear to you, or screen is not visible to you, then just let me know through the chat, or unmute yourself, because my system is crashed. So I am using audio from the mobile, and I am sharing my screen from another device. So maybe it may. Okay, without wasting too much time, let's start. Uh, Again, I'm asking to you, my screen is visible and voice is clear to you. Am I right? Yes, sir. Okay, let's Yes, start. sir. Okay. We have completed the unit number 1, that is the introduction of basic operating system. In that, we have seen what do you mean by operating system, then types of operating system, history of operating system, structure of that operating system, and system calls for the different management. Okay, so I'm not asking to, I'm not going to ask all the questions from unit number 1, but right now I would like to ask one or two questions to all. So all of you have to type into a chat. First question, what do you mean by OS? Definition of OS, everyone has to type into a chat. Be fast. Definition of operating system, everyone type into a chat. Good, first answer, Bajrang, which is interface between user and computer hardware. This activity is known as brainstorming, or we can say the question answer session. Question answers. And another benefit of this question answer is, in a 1 mark descriptive question, definitely they ask definition of operating system, then you should know it. At that time, I don't want that Google answer. Simply, you can write OS is interface between user and computer hardware. लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लिख दो. It provides intermediary or interface between user and hardware. That's fine. तो ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है. मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि आई फील दैट आई एक्सपीरियंस दैट थिंग फ्रॉम यू गाइज ओनली. कि suppose in a DBMS they ask
व्हाट इज ईआर डायग्राम, व्हाट इज ईआर डायग्राम। तो आप सबने कुछ ना कुछ लिख दिया है गूगल में, जो भी मिला वो, द इवन नॉट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, मार्केटिंग या एमबीए का कुछ मिला तो वो भी डाल दिया है, पता नहीं क्या क्या डाल लिखा है। तो डोंट डू दैट। सिंपल डेफिनेशन जो भी है वो याद रखो और परफॉर्म करो। इसलिए मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि लास्ट में एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट दैट थिंग। चलो प्लेसमेंट, फिर ऑफलाइन एग्जाम, उसके लिए तो हम सोचते ही नहीं। अगर डिस्क्रिप्टिव 1 मार्क ऑफलाइन हो या फिर ऑफ ऑनलाइन हो, ये 1 मार्क्स में तो पूछ ही सकते हैं। ऐसी जो डेफिनेशन है वो आपको याद ही रखनी है। इवन दो आफ्टर 3 यूनिट्स इफ आई आस्क, यू शुड गिव द प्रॉपर आंसर, नो नीड टू सर्च ऑन अ गूगल। ओके, कि अभी दूसरे यूनिट में प्रोसेस वाले में बहुत सारी डेफिनेशंस आएगी, मे बी इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। तो आपको वो सब कुछ याद रख के, याद रहेगा तो ही एल्गोरिदम में एग्जाम्पल सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सोल्व दिस एग्जाम्पल्स। ओके, करेक्ट। Interface between user and computer hardware, that is known as the operating system. Now unmute yourself. Next question. No need to type into a chat. Only 1 or 2 students can give the answer. What are the functions performed by the operating system? Who is going to tell? What are the function or tasks performed by the operating system? Because ये type करने, yes, Karthik raise the hand. Sir, process management, memory management, security management, resource management, then file management. Good. Okay, good. ठीक है, जब और किसी को पूछने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी कवर मोस्ट ऑफ management. So now, based on your answer, we are going to start the next unit, that is process management. So first of all, we need to understand what do you mean by process, what do you mean by management. So management, it means to manage something, but here we are talking about the processes. It means to manage all the processes. Now next we need to understand what do you mean by process. Process किसको बोलेंगे हम? Any idea, any rough idea? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Bajrang. Performing any task or manipulating or calculating something. ओके, ठीक है, चलो। यस, टास्क परफॉर्म, टास्क, ओके गुड। तो आप टास्क को प्रोसेस बोलेंगे, लेकिन हाँ, टास्क को प्रोसेस बोलेंगे, लेकिन वो टास्क परफॉर्म कैसे होता है, कहाँ पे होता है? एनी आइडिया, रफ आइडिया, एनी, कैसे होता है? सर सीपीयू में होता है। Yes, Vicky Vinayak, CPU, Shravan is saying backend. Yes, good. That is the also, that is not a perfect answer, but you are going on a right track. It means you are thinking about the same way which I want to explain you. Again, I am requesting all of you, while you are learning, at that time, no need to search on a Google, because in a Google you can find everything. वैसे तो मैं क्यों आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके सामने पूरी स्क्रीन शेयर करके दूसरी टैब ओपन करके उसमें नहीं लिख सकता व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। आई एम नॉट टेकिंग योर एग्जाम्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आई वांट टू नो योर व्यूज, कि आप क्या सोच रहे हो प्रोसेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो आपके लिए वो इजी रहेगा कि ये क्या है नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आहिस्ता ध्यान रखना। अगर आपने अपनी तरफ से भी आंसर दिया या फिर कॉपी पेस्ट किया है, जो भी है,
not even only Shaista, everyone. क्योंकि बेसिक से ही हम आगे करेक्ट वे करेक्ट पाथ पे जाएंगे तो आगे आगे जाके हमें पता चलेगा कि क्या क्या है. सो आई वांट दैट आंसर which is given by Vicky and Shravan and Akash is saying motherboard somewhat. Yes. So CPU it means processor. So backend में प्रोसेसर में कोई भी टास्क परफॉर्म होता है तो उसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं. So let's see. So there are several definitions for the process. In this, we are going to cover the definition of process, relationship between the process, different states of that process, and state transition diagram between the multiple process. Then PCB, that is process control block. Next, context switching, thread, concept of multi-thread, benefits of threads, type of threads, and then important part, process scheduling, definition, objectives, type of scheduler, scheduling criteria. These all are the definitions. CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, response time. Definition only. And then after scheduling algorithm, primitive, preemptive, and non-preemptive. First come first serve, SJF, RR, multiprocessor scheduling, types, performance, evolution of the scheduling. Now, this much topic we are going to cover. आप सबको इसमें से एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, because these all topics are very 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 much important in terms of exam or in terms of understanding. If you understand the starting process things, then you are able to do everything. So that's why I am asking to you, what is your views? So views से पता चला आप प्रोसेस को टास्क समझ रहे हो, टास्क परफॉर्म होता है सीपीयू में, ठीक है, तो आधा काम ऐसे ही हमारा कम हो गया, आधी चीज तो आपको ऐसे ही समझ में आ गई. So let's see. In the definition, process can be defined in a various way. First, program in execution. Program in execution, it is known as the process. So आप बोलेंगे program, it means so whatever we have written, जो आपका टास्क है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं. लेकिन वही प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड में जाता है, इन एग्जीक्यूशन में जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है. लेकिन एग्जीक्यूशन में कब जाता है और कहाँ जाता है? जब उसको सीपीयू अलॉट होता है तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा. विदाउट सीपीयू इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. विदाउट सीपीयू वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. सो प्रोसेसर में कोई भी प्रोग्राम लोड होता है और एग्जीक्यूट होता है, इट बिकम्स अ प्रोसेस. समझ में आ गया? सो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट इज नॉन एज द प्रोसेस. ये अनदर डेफिनेशन 1 मार्क की हो गई, ये सबको याद रखनी है. आई विल आस्क दिस क्वेश्चन एट एनी लेक्चर. कभी भी मैं पूछ लूंगा प्रोसेस की डेफिनेशन, ओएस की डेफिनेशंस आप सब लोग याद ही रखो, क्योंकि ये शॉर्ट एंड सिंपल है. प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन ये एमसीक्यू में भी मैं पूछ सकता हूँ कन्वर्ट करके, या फिर 1 मार्क डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता हूँ. ठीक है, एट दैट टाइम नो नीड टू सर्च ऑन गूगल, बिकॉज आपको भी अभी पता चल गया है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन कर रहे थे, सर इतना टाइम है तो मेरा टाइम नहीं मिलता. मुझे पता है क्यों, क्योंकि आपको गूगल करने में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है. उससे बजाय आप अभी ये सर्च करो, सर्च क्या, याद करो, याद रखो, ताकि सिर्फ टाइप ही करना पड़े तो टाइम वेस्ट कम होगा. वो भी मैनेजमेंट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज दी बेस्ट थिंग. टाइम मैनेजमेंट करो तो ही आपका पेपर 70 मार्क्स का 230 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, 230 आवर्स में खत्म हो जाएगा. अदरवाइज छूट जाता है. फिर आप बोलते हैं कि सर बहुत लेंथी था. लेंथी नहीं था, आपने टाइम वेस्ट किया था इधर उधर देखने में. क्लियर? फर्स्ट डेफिनेशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, you should remember, that is known as the process. Another definition, an instance of a program running on a computer, because sometimes a program is lengthy or program is big, then it is not possible to load entire program into the
CPU. So at that time, some part of that program will be running on a computer. So we can say that instance of a program. And third, entity that can be assigned and execute on a processor. Processor it means CPU. CPU पे जो भी एंटिटी हम असाइन करेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा उसको प्रोसेस बोल सकते हैं. So that is meant to mainly this difference. प्रोग्राम एंड प्रोसेस के बारे में डिफरेंस क्या है याद रखो. प्रोग्राम आपने कहीं पे भी लिखा है वो प्रोग्राम है, नोट पैड में या फिर पेजेस पे कहीं पे भी लिखा है वो प्रोग्राम है. उसको सीपीयू अलोकेट किया, वो एग्जीक्यूट हुआ, it becomes a process. So program in execution that is known as the process. Correct? Done? अभी मैं इसलिए स्लो जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि रामायण खत्म होने के बाद सीता कौन है वो प्रश्न पूछने वाला सबसे बड़ा फूल है. तो सिमिलर वे पूरा खत्म होने के बाद आप बोलेंगे सर प्रोसेस क्या है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई विल नॉट गिव यू आंसर. क्योंकि मैंने फर्स्ट यूनिट में देखा कि कर्नल तो स्टार्टिंग में हो गया था और लास्ट में जब आया ना लास्ट पीपीटी, तब किसी ने पूछा था सर व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल. अरे भाई जब एक्सप्लेन कर रहा था तब कब ध्यान था. नो डाउट डाउट्स आ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो जब एक्सप्लेन करते हैं तब इधर उधर मत जाओ और ऐसे ज्वाइन करके कहीं पे भी मत चले जाओ. इसलिए मैं अभी भी स्लो जा रहा हूँ और ये यूनिट तो इतना मैं स्लोली जाने वाला हूँ. और ये यूनिट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें से 3-4 थियरी तो पक्की ही है 7 मार्क्स की. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. सो अभी हमें पता चल गया कि प्रोग्राम क्या है और प्रोसेस क्या है, तो उसका डिफरेंस हम देख लेते हैं. प्रोग्राम हमने कहाँ पे लिखा है, इधर व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, पेज पे लिखा है, या फिर सॉफ्ट कॉपी में नोटपैड में लिखा है. ठीक है, तो उसको हम पैसिव एंटिटी बोल सकते हैं. प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल. क्योंकि वो पैसिव है, अभी रन नहीं कर रही है. लेकिन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन. जो एग्जीक्यूशन में होता है वो तो एक्टिव होता है. सो दैट्स व्हाई प्रोसेस इज अ एक्टिव प्रोसेस इज अ एक्टिव स्टेट. कई बार 2-3 मार्क्स में प्रोग्राम और प्रोसेस का डिफरेंस पूछ लेते हैं, या फिर डिफाइंड प्रोसेस डिफाइंड प्रोग्राम. तो उस टाइम पे आप लिख सकते हो, सिर्फ डेफिनेशन प्रोसेस की नहीं लिखेंगे, ये भी लिख सकते हो. सेम चीज दूसरे पॉइंट में लिखी, प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू अ मेमोरी. सेम थिंग, नथिंग न्यू. लेकिन ये किस लिए लिखी है, ताकि आपको पैसिव और एक्टिव का डिफरेंस समझ में आ जाए. प्रोग्राम पैसिव चीज है और वो जब एग्जीक्यूटेबल फाइल लोड होगी मेमोरी में इट बिकम्स अ प्रोसेस. और एग्जीक्यूटिंग हो रहा है इट मीन्स एक्टिव. इंग्लिश में हम कैसे एक्टिव टेंस बोलते हैं, सिमिलर वे, क्योंकि वो एक्टिव है राइट नाउ, इसलिए. Now next, if you remember this third point, then it's fine. Otherwise, it's okay. Daemon process. Daemon process it means processes that are running in the background mode. Processes that are running in the background mode. It is known as the daemon process. For example, checking email. बैकग्राउंड मोड में जो भी प्रोसेस चल रही है, करंटली आप कोई और प्रोसेस में बैकग्राउंड में जो और कोई और प्रोसेस चल रही है तो उसको डेमन बोल सकते हैं. नाउ अभी हमको इतना पता चल गया. गोइंग ऑन अ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. हमने पहले क्या समझा, मैनेजमेंट क्या है, फिर क्या समझा, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है. अब ये सीखना है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न what how we can create the process, how we can terminate that process, what is the use of process creation, process termination, उसके स्टेट्स क्या है. तो वन बाय वन अभी हम वन प्रोसेस का समझेंगे, बाद में मल्टीपल प्रोसेस का समझेंगे और उसका शेड्यूलिंग करेंगे. इसलिए ये कंटिन्यूटी है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ज्वाइन all the lectures on time. Don't miss even single lecture.
तो ये कंटिन्यूटी रहेगी तो आपको लास्ट में कोई चीज देखनी ही नहीं पड़ेगी, दैट इज माय गारंटी। सो प्रोसेस ऑपरेशन, देयर आर मेनली टू ऑपरेशन, प्रोसेस क्रिएशन है, प्रोसेस टर्मिनेशन। जो क्रिएट होती है वो डिस्ट्रॉय तो होती है, जिसका बॉर्न होता है वो उसकी डेथ तो होती है। सिमिलर वे प्रोसेस बॉर्न हुई और प्रोसेस की डेथ हुई। So that is not a proper language, but we can consider correlate with the example. तो प्रोसेस क्रिएट होगी, उसके बाद प्रोसेस टर्मिनेट होगी। तो प्रोसेस क्रिएट कौन कौन सी तरह से होती है, कब होती है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज योर व्यूज? प्रोसेस क्रिएट, क्या सर? प्रोसेस क्रिएट कैसे होती है और कब होती है? सर जैसे कि लॉकिंग वॉकिंग जैसे सर बता रहे थे, एक बार लॉक लग जाता है तो उस टाइम सर। लॉकिंग में तो नहीं, बेसिक हम अभी देख रहे हैं। सर हम्म, सर जैसे हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन जाता होगा सीपीयू में, उस टाइम पे प्रोसेसर क्रिएट होता होगा। ओके। सर आई थिंक जब हम पीछे वाला माइक बंद करो अंकित। ओके सर, सर जब हम का ऑर्डर देते हैं सीपीयू को किसी चीज के लिए, या फिर कुछ कोई हम फाइल खोलते हैं, तो उसका जो खोलने का प्रोसेस होता है वो सर सीपीयू में जाता है। ओके। Sir, हाँ बोलो। on the command of user, यस। और कुछ? सर जब हम प्रोग्राम को एक्टिव मोड में करना चाहते हैं तब प्रोसेस शुरू। हम्म, Sir, when we give some instruction, after that this instruction go for a processor. ठीक है। वैसे आप अब ये सोचो कि आप कोई भी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको फ्लो पता है, आप देख सकते हो, तो उसमें से आप किसको प्रोसेस बोल सकते हो? सपोज आपने लैपटॉप स्टार्ट किया, तो किसको प्रोसेस बोल सकते हो स्टार्टिंग से लेके शट डाउन तक? उसमें से कौन कौन सी आपको प्रोसेस लग रही है? सर सारी प्रोसेस ही हो रहा है उसमें सब। ओके, एग्जांपल दो। जैसे विंडोज स्टार्ट जैसे कर रहा सर हूँ, पासवर्ड, विंडोज स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है? फिर वो अंदर के सब प्रीसेट्स रेडी करके रखते हैं लोड होने के ओके, लिए डेस्कटॉप पे, गुड। एप्लीकेशंस रेडी करने के लिए रखते हैं। और चलो कोई बात नहीं, इतना तो सही है। अभी हम देखेंगे कि किसको हम प्रोसेस क्रिएशन बोल सकते हैं। तो प्रोसेस क्रिएशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, व्हेन ओएस इज बूटेड, several backend में several system processes are created. We cannot see that thing, but system processes are created and they provide the system services. They do not need any user interaction, it just execute in the background. That is, we can say that process. So process create हो गई। कुछ प्रोसेस ऐसी होती है, आप सबने बोला वो सही है कि सर सारी प्रोसेस ही है। यस डेफिनेटली एक्टिव में ही रहेगी, तो ही वर्क कर पाएंगे ना। तो प्रोसेस बोल सकते हैं, बट
ये जब थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको बात करूं तो जब सिस्टम इनिशियलाइज हो रहा है हो रही है तब बैकएंड में जो भी प्रोसेसेस हो रही है तब प्रोसेस क्रिएट होती है। ओएस जब बूट होता है तब सिस्टम सर्विसेज सिस्टम प्रोसेसेस क्रिएट हो सकती है। दूसरा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम कॉल। तो हमने सिस्टम कॉल देखा, जब वो सिस्टम कॉल होता है तब वो प्रोसेस क्रिएट हो सकती है। लाइक फोर्क सिस्टम है, फोर्क सिस्टम कॉल है, तो फोर्क सिस्टम कॉल क्या करता है, इट क्रिएट्स द चाइल्ड प्रोसेस, सो एट दैट टाइम दी प्रोसेस क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, आप सबने बोला है वो तो, whenever user gives instruction program loads in a RAM when goes for execution on request of user, ये आप सबका आंसर है, ठीक है। तो वो परफेक्ट है, यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। So user can start new process by typing command or double click on some application icon that we are doing. गूगल मीट में ज्वाइन हुए वो भी एक प्रोसेस ही हुई। इनिशिएशन ऑफ दी बैच जॉब, सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एप्लीकेबल है कि जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम परफॉर्म कर रहे हैं तब यूजर सबमिट द जॉब्स एंड आफ्टर एग्जीक्यूट एंड देन फ्री दैट रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ प्रोसेस टर्मिनेट। चलो, पहले मैं आपसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ अब समझ में आया। आपको सब कुछ पता ही है, सिर्फ उसको टेक्निकल टॉपिक में कहाँ पे इंक्लूड करना है दैट यू शुड नो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिफोर यू एंड इट हेल्प्स अ लॉट। आपको पता हो और जो आप सीख रहे हो तो उसमें बहुत मजा आता है। चलो, प्रोसेस क्रिएट हो गई, प्रोसेस टर्मिनेट कब होती है, प्रोसेस क्लोज कब होती है? सर वो आफ्टर एग्जीक्यूशन के बाद। आफ्टर एग्जीक्यूशन। सर जब हम लोग That लैपटॉप को is शट not a डाउन करते that is not a perfect answer. I'm not saying So it PC is shut down. wrong answer, but that is not a perfect answer. Chris is हैं saying सर जब closing of program. Vicky सर is जब saying कंप्यूटर शट डाउन करते हैं yes, when task is done, when execution is completed. Okay, that is one सर व्हेन वी possibility. गेट अ परफेक्ट आउटपुट जो हमने टास्क दिया है Okay, कंप्यूटर को, वो और वहाँ से अभी प्रोसेस होके जो कंप्लीट हमें टास्क वापस मिलता है, उससे okay, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। okay. Anything else? यस I'm सर। not. Yes, because I'm not satisfied with all this answer because all of you have gave the only one answer. Closing of program. सर जब हम अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं तो हमें वाईफाई की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक जब हमारा वाईफाई कनेक्शन लॉस हो जाए तो फिर वो वहीं पे हमारा रुक जाता है अपडेट होने का प्रोसेस। Okay, Bhagyas is saying correctly. Error detection. Okay, good. At that time, Whenever process any terminal. Yes, Divyan sir. sir, whenever any error occurs. That is Bhagyas said that error detection. That is the second point. Good. और और कैसे प्रोसेस टर्मिनेट होती है? आपने कभी की है? हाँ, डेफिनेटली की है, लेकिन आपको अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। जब मैं बोलूंगा तब आपको याद आएगा कि हाँ ये तो हमने किया है। Sir, also when user give instruction to terminate the process, then also terminate process. कैसे करते हो आप श्रवण? Sir, close button. Close button. Okay. Any another way to close that application or service? Sir, using task manager. Yes, very good, Karthik. टास्क मैनेजर से आप क्या करते हो? उसमें एक वर्ड आता है, वो वर्ड मुझे अभी चाहिए आप सबसे। टास्क End मैनेजर से task. आप एंड एंड टास्क। एंड टैक्स। यस, गुड। एंड टास्क, उसको अनदर वर्ड में बोलते हैं किल, ठीक है। किल द प्रोसेस। सो दिस ऑल आर द रीजन वेयर वी कैन टर्मिनेट द प्रोसेस। देखो, फर्स्ट वन नॉर्मल एग्जिट, दैट इज वॉलेंटरी। सो आप सबने जो पहले आंसर दिया है वो टर्मिनेट व्हेन डन देयर जॉब, टास्क कंप्लीट होगा तब वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो व्हेन ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड then it will be terminate. So event user can select option to terminate the process. दूसरा,
एरर एग्जिस्ट, जो भाग्यस ने बताया, एरर एग्जिस्ट, उसमें भी वॉलेंटरी प्रोसेस इवन टर्मिनेटेड व्हेन सम एरर अकर्ड, फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय जीरो एरर। कुछ सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन में भी ये होता है, कुछ एरर आ जाती है तो टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाती है वो प्रोसेस। तो ये दो हो गया। अब आपको समझ में आया कि आपको पता पता है लेकिन कहाँ पे वो इंक्लूड करना है वो नहीं पता है। तो उसका मेन एडवांटेज क्या है कि एग्जाम में या फिर वाइवा में कहीं पे भी आप इजीली समझे हो तो इजीली आप आंसर दे सकते हो। वहां पे हेजिटेशन या फिर हाँ एक मिनट सर, एक मिनट रुको सर, एक मिनट, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह इस रीजन से टर्मिनेट हो सकती है। फिर नेक्स्ट, फैटल एरर इनवॉलेंटरी, इट मीन्स नॉट वॉलेंटरी, फैटल एरर को जनरेट हुई बाय मिस्टेक तो वो सिंपल टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। If some other process requests for OS to kill the process, then Unix, it can be done by kill system call, while in Windows terminate process। तो आप एंड टास्क कर रहे हैं वो भी एक किल ही हुआ, तो प्रोसेस को हम मैन्युअली किल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ प्रोसेस रिलेशनशिप, प्रोसेस में रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? तो देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम। प्रोसेस एंड प्रोग्राम, आप सबने सी लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें प्रोग्राम्स बनाए हैं। सो प्रोग्राम्स में कैसे बनाए? मेन फंक्शन, उसके बाद सब फंक्शन, सब फंक्शन, सब फंक्शन। तो सपोज 3-4 सब फंक्शंस है, तो मेन में आप सिर्फ क्या करते हो? उसको कॉल ही करते हो। डेफिनेशन अलग है, डिक्लेरेशन कहीं पे अलग है, आप सिर्फ फंक्शन कॉल ही कर रहे हो। तो वो प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंस रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं। There are mainly two kind of relationship. One is the one-to-one and second one is the many-to-one. One-to-one, it means it is not aware with the sub functions. It will concern only with the one program, one process, that is the main. So when any single execution of sequential program is in progress, sequential program it means main program, सब फंक्शन, सब फंक्शन, सब फंक्शन, तो वो सीक्वेंस हुई। उसमें से कोई भी आप एग्जीक्यूशन में डालो तो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मेन प्रोग्राम एंड सेट ऑफ फंक्शंस। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्लोज बिटवीन मेन प्रोग्राम एंड सेट ऑफ फंक्शन, क्योंकि आप फंक्शन कॉल कर रहे हो एडिशन का, तो वो नीचे डेफिनेशन में जाएगा, फिर वापस मेन प्रोग्राम में आएगा, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ तो वो वहां पे जाएगा, फिर रिटर्न होगा, ऐसे होता है। लेकिन वन टू वन रिलेशनशिप कैसे, किसको बोलते हैं? OS is not aware about the existence of that sub program। OS को पता ही नहीं कि सब फंक्शन है। OS is concerned with only the main function, only one program, that is one to one। तो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस, तो जो मेन प्रोग्राम है उसकी एक ही प्रोसेस बनेगी, तो उसको वन टू वन बोलेंगे। और मेनी टू वन में क्या हो सकता है कि जो जितने भी सब प्रोग्राम है उसको हम इंडिविजुअल प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं, तो मल्टीपल प्रोसेस होगी। सो मेनी साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम informs OS about its parts that are to be executed concurrently, thus OS consider each part as a process। OS consider each part as a process। एडिशन का फंक्शन से उसको वो भी एक प्रोसेस कंसिडर करेंगे, सब्सट्रैक्शन उसका भी एक प्रोसेस क्रिएट कंसिडर करेंगे OS। सो वन प्रोग्राम एंड मेनी प्रोसेसेस, एक ही प्रोग्राम है उसकी लेकिन मेनी प्रोसेसेस हुई, तो दिस प्रोसेसेस आर नोन एज द कॉनकरेंट प्रोसेस। सो अब दिक्कत होगी कि whenever we have a multiple process, many processes, at that time we need management, at that time we need management, so that management we should learn। तो अभी तक हमने क्या सीखा? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, आफ्टर दैट प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन, फिर रिलेशनशिप कि वन टू वन है और मेनी टू वन है। तो जब मेनी की बात हुई तो क्या हुआ? एक प्रोसेस की बजाय मल्टीपल प्रोसेस। मल्टीपल प्रोसेस की बात करें तो कॉनकरेंट ट्रांजैक्शन आ गए, सॉरी कॉनकरेंट प्रोसेसेस आ गई, मतलब पैरेलल
साइमल्टेनियस प्रोसेसेस आ गई। तो जब हम पैरेलल की बात करें तब क्लेसेस तो आते ही है, तो उसको रिजल्व करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। दैट्स व्हाई योर यूनिट हेडिंग इज प्रोसेस मैनेजमेंट। नाउ 941 we are able to complete this. Okay, next here is the process state. So अभी हमारे पास प्रोसेस क्या है वो समझ में आ गया। तो प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स है, प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स है, तो वो हम देखेंगे। प्रोसेस स्टेट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन प्रोसेस। जब हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो वहां से लेके जब तक वो प्रोसेस क्लोज नहीं होती तब तक वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पास होती है। सो फर्स्ट जब हम कोई भी प्रोसेस क्रिएट करते हैं वो न्यू स्टेट में आती है। सो द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, it is in a new state. After that we have a running state. Name suggests meaning. Running it means process currently executing में है, CPU currently executing instruction of that process, so that is in running mode. अब सोचो रनिंग मोड में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। रनिंग मोड में से अगर कुछ उसको चाहिए, इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, या फिर वट एवर, या फिर कोई मैसेज आया, एरर आया, इंटरप्ट आया, जो भी है, तो दो पॉसिबिलिटी है। इधर वो वेट में जा सकती है, ब्लॉक में जा सकती है। अगर कुछ नहीं आया तो वो प्रोसेस रेडी है। तो रेडी में जो भी प्रोसेस होगी उसको हम सीपीयू देंगे। So the process is waiting to be assigned to a processor CPU. और वेटिंग ब्लॉक में क्या, प्रोसेस हैज टू वेट until requested resource is granted or process is waiting for some event to occur, that is input from user. जब तक उसको वो इनपुट नहीं मिलेगा और जब तक वो जिस रिसोर्स की रिक्वेस्ट की वो नहीं मिलेगा तब तक वो वेट करेगा और ब्लॉक स्टेट में जाएगा। वेटिंग और ब्लॉक बोथ आर सेम। और सब कुछ होने के बाद टर्मिनेटेड, तो फिनिश एग्जीक्यूशन और ओएस हैज एब्रोटेड इट, उसको हम क्लोज कर रहे हैं तो वो टर्मिनेट स्टेट में जाएगा। So let's see that diagram. Yes. So this is known as the state transition diagram for any process. Here it is the 5-state transition diagram. In some other books you may find a 6-state or 4-state or 3-state or 2-state. But this is the standard 5-state transition diagram. And this one is the very most important question, exam point of view. First, you need to write the states which we have discussed earlier. Then after you need to write this diagram, and then after you need to explain each and every state. So यहाँ पे देखो, first, whenever any process is created, it will be in a new state. Then after it will be admitted to the ready state. तो ready state में हमने क्या देखा था? The process is waiting to be assigned to a processor. क्योंकि रेडी जो रहेगा उसको ही हम रनिंग मोड में डालेंगे। जो रेडी नहीं है वो तो पहले रेडी होके आओ फिर रनिंग मोड में उसको एग्जीक्यूशन मोड में डालेंगे। तो रेडी में मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड द सीपीयू। वो डिस्पैच होगी रनिंग मोड में। रनिंग में क्या होता है? करंटली एग्जीक्यूशन में वो प्रोसेस रनिंग में है। तो रनिंग में से 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, 3 आउट गोइंग एरोज है। फर्स्ट वन इज टाइम आउट टू द रेडी, सेकंड वन इज द इवेंट वेट, एंड थर्ड वन इज द रिलीज। तो हम पहले इजी वाले देखते हैं। थर्ड वन रनिंग में से एग्जिट स्टेट में कहाँ जाएगा? एग्जिट और टर्मिनेट स्टेट में। जब वो खत्म हो जाएगा वॉलंटरी रिलीज करेगा, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो वो सीधा नॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। दूसरा, रनिंग मोड में से रेडी मोड में वापस टाइम आउट होने के बाद आएगा। टाइम आउट हमने देखा टाइम शेयरिंग में, टाइम स्लाइस।
राउंड रॉबिन, और टाइम स्लैश ओवर होगा तो वो क्या करेगा, वो फिर से रेडी में जाएगा, रेडी क्यू में खड़ा रहेगा, और फिर से जब उसका टर्न आएगा तब यहाँ पे फिर से रनिंग मोड में आ जाएगा. दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. एंड थर्ड, इवेंट वेट. इवेंट वेट इट मीन सपोज रनिंग में कोई प्रोसेस है, उसको प्रिंटर की जरूरत पड़ी या फिर इनपुट कीबोर्ड से लेने की जरूरत पड़ी, तो रनिंग मोड में वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा. क्या करेगा, वो सिंपली वेट और ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा. वेट और ब्लॉक स्टेट में आके वो इवेंट खत्म करेगा. जब तक उसको कीबोर्ड और प्रिंटर मिल जाएगा तब तक यहाँ पे रहेगा, और जब वो उसका टास्क इवेंट अकर्ड हो जाएगी तो फिर वो रेडी स्टेट में आके खड़ी रह जाएगी लाइन में, और बोलेगी नाउ आई एम रेडी. जब वो रेडी हो जाएगी तो फिर से डिस्पैच होकर रनिंग में जाएगी. अगेन रनिंग में से उसका टास्क खत्म हो गया तो एग्जिट, उसका टास्क खत्म नहीं हुआ और कुछ इवेंट चाहिए आईओ, तो फिर से वेटिंग ब्लॉक स्टेट में आ जाएगी, या फिर टाइम आउट में यहाँ पे चली जाएगी. Clear? So this is the five state transition diagram for the process. You need to remember all the state with proper direction. यहाँ पे each and every state has a queue. यहाँ पे रेडी में भी क्यू होगी, रनिंग में भी क्यू, और ब्लॉक में भी क्यू. सब जगह क्यू होगी, और क्यू में जो भी प्रोसेस फर्स्ट होगी उसको यहाँ पे रनिंग में जाएगा, फिर ब्लॉक में भी उसको रिसोर्स मिलेगा जो रिक्वेस्टेड फर्स्ट किया होगा उसको. ठीक है. इफ एनीवन वांट्स टू करेक्ट माय स्टेटमेंट देन यू कैन करेक्ट इट. सर रेडी में ऐसा नहीं होता, रनिंग में ऐसा नहीं होता, ब्लॉक में ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है. क्योंकि मैं जो भी बोला उसमें से आधा सच है और आधा झूठ है. तो लास्ट में बोला ना, किसी को कुछ बोलना है? सर यस. न्यू के बाद तो रनिंग होना चाहिए ना? न्यू के बाद रनिंग क्यों होना चाहिए? न्यू के बाद सर पहले प्रीवियस स्लाइड में था कि न्यू के बाद रनिंग था, फिर उसके ऐसा बाद रेडी. वेट. रट्टा मत मारो. वो तो सिर्फ स्टेट्स ही बताए, वो तो मैं टर्मिनेटेड भी यहाँ पे डाल सकता हूँ. रट्टा मत मारो ऐसा, इसलिए मैंने यही डाला है जानबूझ के. चलो मैं उसका बेस्ट एग्जांपल दे दूं. आप सुबह में उठते हो, ठीक है, वो प्रोसेस क्रिएट हो गई, न्यू डे न्यू हो गई, ठीक है, फिर आप तुरंत ही कॉलेज आ जाते हो? नो सर. नहीं आता तो फिर रनिंग क्यों आना चाहिए? आप रेडी होते हो ना, ना धो के मस्त मेकअप वेकअप करके सब लोग तैयार हो जाते हो, ठीक है, मस्त जींस विंस पहन के फिर आते हो. तो पहले आप रेडी होंगे, फिर रनिंग में आएंगे. रनिंग में भी आप कोरिलेट करना है एग्जाम्पल, ठीक है. रनिंग में भी आप क्या करें, चालू एग्जाम में अगर चालू एग्जाम क्या चालू क्लास में सपोज आपकी तबीयत अच्छी नहीं रही तो आप क्या करेंगे, कॉमन रूम में या फिर हॉस्टल में वापस चले जाएंगे. दैट इज अवर वेटिंग और ब्लॉक स्टेट. जब आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो आप फिर से ज्वाइन करेंगे क्लास, आइदर मे बी 15 मिनट्स, मे बी 1 आवर, मे बी 2 आवर्स, जब बोलो तब. हम टाइम अभी नहीं देख रहे, टाइम बाद में देखेंगे. तो आप फिर से क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, इट मीन्स परमिशन लेंगे, सर नाउ आई एम फाइन, आई एम रेडी, नाउ आई वांट टू अटेंड माय सेशंस. तो आप रेडी स्टेट में पहले जाएंगे, रेडी में से फिर आपके क्लास रनिंग में जाएगा. ठीक है. तो एक एग्जांपल. दूसरा, रनिंग में से टाइम आउट होके फिर से रेडी में कब आएगा, क्योंकि हमारा लेक्चर 1 आवर का ही है, ठीक है. अभी मेरा टाइम आउट हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स, तो मेरे से ये आप गूगल मीट वापस ले लेंगे और आप किसी दूसरी प्रोसेस को लिसन करेंगे, ठीक है. तो वो टाइम आउट हो गया. नाउ आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ आपका लेक्चर लेने के लिए. अगर मुझे प्रोसेस प्लेटफॉर्म मिला तो, सीपीयू मिला तो, ठीक है, तो मैं रेडी स्टेट में रहूंगा, जैसे मैं क्यू में ही रहूंगा. सपोज दूसरा मेरा लेक्चर नहीं है या फिर आई एम रेडी, तो लास्ट में लेक्चर में कोई और बोलता है कि सर आज आप ले लो मेरी वजह, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मैं कहूँगा ठीक है आई एम रेडी. सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं. रेडी में से फिर मैं आपका लेक्चर लूँ तो वो रनिंग में आ गया. रनिंग में से अगर सपोज मेरा टास्क कंप्लीट हो गया तो मैं फिर एग्जिट हो जाऊंगा. सिंपल. तो ये प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन इतना इजी है.
लेकिन मैं जो बोला उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने क्रिएट किया। रेडी में क्यू, रनिंग में क्यू और वेटिंग में क्यू, इस तीनों में किसी को कुछ बोलना है? सर यस। सर रेडी के बाद सर वेटिंग क्यों नहीं हो सकता है सर? डायरेक्ट कैसे वेटिंग में चला जाएगा? सर मान लीजिए कि सर मान लीजिए कि सर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है, अगर सर कॉल करता है, अगर सर जैसे न्यू में सर यही होता है ना कि कोई कॉल करता है अगर सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो सर उसमें सर रैम में एड्रेस देता है। तो सर वहाँ पे जब सर ये उसके बाद सर रेडी होता है, तो रेडी में सर वही होता है ना कि सर जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है कि सर जैसे लोड होता है, जैसे कि कोई मेमोरी में लोड होता है, तो सर लोड के बाद सर वो डायरेक्ट सर वो ट्रांसफर होके एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता है। नहीं, वो लोड तो होगा ही कहाँ पे? प्रोसेस सीपीयू में एक बार तो लोड, एक सेकंड के लिए भी लोड होके फिर वेटिंग में चला जाएगा। नहीं, रेडी में से रनिंग में ही होगा। ओके सर। चलो, आप लोगों की सोचने की ताकत अब कमजोर हो गई है, तो मैं ही बता दूं। रेडी में क्यों हो सकती है? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस रेडी है। अभी मैं पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट रेज योर हैंड, तो आप लोगों में से बहुत सारे रेज हैंड होंगे, लेकिन मैं किसको टर्न दूंगा वो डिफरेंट थिंग। तो आप सबकी रिक्वेस्ट क्यू में रहेगी, ठीक है। लेकिन रनिंग में क्यू हो सकती है, यस और नो? रनिंग मोड में क्यू हो सकती है? हेलो, रनिंग मोड में क्यू हो सकती है, रनिंग स्टेट में? आइदर से यस और नो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस बोलो तो फिर, रनिंग मोड में क्यू हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, जरूर है? यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपकी सरप्राइज टेस्ट ले ली और सब फेल हो गए। देखो मैंने क्या बोला, रनिंग स्टेट में क्यू की जरूरत है, क्यू होगी। यहाँ पे रनिंग स्टेट का मीनिंग समझो, रनिंग सीपीयू करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस। इट मींस क्या हुआ? रनिंग स्टेट में प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, तो प्रोसेस कितनी एग्जीक्यूशन में हो सकती है? वन और मेनी? वन। एट ए टाइम ओनली वन, तो क्यू की जरूरत पड़ेगी उसमें? नो सर। नहीं पड़ेगी, दैट इज द पॉइंट। तो रनिंग बोर्ड में क्यू होगी ही नहीं, रेडी में क्यू होगी। जो पहले होगी वो डायरेक्टली रनिंग में चल जाएगी, ठीक है। रनिंग में सीपीयू एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस ही रन करेगी। इसलिए मैं बोला था कि सभी पॉइंट्स, सभी टॉपिक्स याद रखो, फंडामेंटल्स। आज के लेक्चर का ही आप सब लोग भूल गए, ठीक है। चलो, ये डिस्कशन हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. So here we conclude the today's session. We have discussed about what is process, its states, difference between program and process. All of you remember all this concept. In next lecture, I am going to ask questions to all of you. Okay. If you have any query, then you can ask. सर एक क्वेरी है रिलेटेड सर, सर पोर्टल के बारे में सर। वो वहाँ पर सर आप लोड पोर्टल नहीं के करते बारे में? वीडियो। पोर्टल के बारे में नहीं, मैंने सर अपलोड ये किया, अपलोड सर किया वीडियो है। आपका अपलोड नहीं है सर, 2 लेक्चर से कंटिन्यू हाँ अपलोड नहीं है। हाँ, 2 लेक्चर से नहीं है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू माय सिस्टम इज क्रेश, तो उसमें वीडियोस पड़े हैं तो वो नहीं हुए। सो वेट फॉर 1 और 2 डेज, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से ये नहीं कर पाए आपकी अटेंडेंस और ये सब, ठीक है। ओके सर। वो डोंट वरी, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, ठीक है। ओके, लेट्स कंक्लूड। फॉर अटेंडेंस